Hello dear children, good afternoon. Today we are going to begin this lesson. The name of the lesson is Evans Tries an O-Level. Evans is the name of a criminal and O-Level, this is the name of a course, academic course. Generally this happens in German language, O-Level. You must have heard this particular course in computers also. O-Level is a kind of academic course which can happen or which can be used in any language. But here it is used in the reference of German language. So Evans, the story is that Evans, a criminal, he is doing an academic course. And the name of the academic course is O-Level in German language. And an examination has to be arranged for him because he has completed the course. So the examination is at the end of the term. So the examination preparations are going on, and now the question is, Evans is very notorious among the people related to police and crime. That in what way he is notorious? He is notorious because he is known with the name of Evans the Break. It is said that Evans does not stay at one jail, and he breaks the jail and he just absconds from there. He runs away from there by breaking the jail. That's why he is famous amongst his companions with the name of Evans the Break. So the question or the doubt is whether whatever the course he is going to attempt for, or whatever the examination he is going to attempt for, is really his genuine effort to get through an academic course, or he is planning to run away from there. This has to be seen. So what happens, that is a very entertaining story this one is, but while understanding or reading this story, you have to keep your mind away, because whenever you apply your mind to understand the story, you will not be able. So things happen there and you have to accept the things as they are. You cannot rationalize or you cannot put any logical comment there ki why did it happen. You have just to accept that okay, this happened. So this is composed by Colin Dexter. Colin Dexter ने इसे लिखा है. So let's go to the introduction to Colin Dexter. Full name was Norman Colin Dexter, OBE. He was an English crime writer known for his Inspector Morse stories of novels which were written between 1975 and 1999 and adapted as an ITV television series. So Inspector Morse was one of the famous characters which he designed, and he was born on 29th of September 1930, died in 2017. It happened recently, and he has got many awards also, Gold Digger and Cartier Diamond Digger and McCavity Awards for best short story. So let's go back to the text. Here, before we begin, the names of the characters or the introduction to the characters is given there. This persona word, this refers to character. Dramatis persona means the characters of this particular drama. Actually, this is the story in the form of a drama. So who is there? The secretary of the examination board. This is the first character. The second one is the governor of HM prison, Oxford. इवांस जिस जेल में है वो जेल जिनके अधीन है, जिसके चार्ज में है, वो है गवर्नर, और एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी जो एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे इस O लेवल का. जेम्स इवांस, his full name is James Roderick Evans. He is a prisoner. He is the criminal about whom we are talking. Mr. Jackson and Mr. Stephens both are prison officers. ये दोनों prison officers हैं. Then it comes the Reverend S. McCleary, an invigilator. He is a priest of church. वो church के पुजारी हैं. Name is S. McCleary. And how is he related to this story? In this story, he works as an invigilator. वो invigilator के रूप में exam लेने आते हैं Evans का. Mr. Carter, detective superintendent. He is a detective superintendent, and Mr. Bell, detective chief inspector. These people appear when Evans runs away from the jail. ये लोग तब appear होते हैं जब Evans जेल से भाग जाता है. So in a way, I have told you that Evans is able to run away from the jail. So let's begin. All precautions have been taken to see to it that the O-level German examination arranged in the prison for Evans does not provide him with any means of escape. Precautions have been taken, यानी सावधानियां पूरी ले ली गई हैं O-level German examination करवाने के लिए प्रिजन के अंदर इवांस का, कि कोई भी अपॉर्चुनिटी उसको ना मिले कि वो वहां से भाग जाए. मीन्स ऑफ एस्केप मतलब भागने का कोई जरिया उसे ना. So it was in early March when the secretary of the examination board received the call from Oxford prison.
So call was given by Oxford prison governor, and whom was given the call to? It was given to the secretary of examination board. तो फोन किसने किया था? ऑक्सफोर्ड प्रिजन के जो आपके गवर्नर हैं उन्होंने फोन किया था एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी को. It's a slightly unusual request, Governor, but I don't see why we should not try to help. Just the one fellow, you say? So this was the voice from the secretary of the examination board. एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी का कहना है कि एक थोड़ी सी अनयूजुअल यानी एबनॉर्मल रिक्वेस्ट है आप जो कह रहे हैं कि एक व्यक्ति के लिए एग्ज़ाम अरेंज किया जाए, लेकिन आई थिंक वी शुड ट्राई टू हेल्प. मुझे लगता है कि हमें हेल्प करनी चाहिए. आपकी रिक्वेस्ट अनयूजुअल है लेकिन फिर भी हम कर सकते हैं क्योंकि एक ही फेलो है एग्ज़ाम देने के लिए. दैट्स इट, चैप कॉल्ड इवांस. ये जो गवर्नर है उसकी आवाज़ है. चैप, चैप मीन्स बॉय या फिर एक मैन, जिसे गाय भी कहते हैं. एक गाय है जिसका नाम है इवांस. स्टार्टेड नाइट क्लासेस इन ओ लेवल जर्मनी लास्ट सितंबर. पिछले सितंबर ही उसने ओ लेवल जर्मन की क्लासेस अटेंड करना शुरू किया. सेज ही इज दैट कीन टू गेट सम सॉर्ट ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड he has told us that he is very much eager to get this academic qualification. That's why we allowed him for these classes, night classes, and today we want him to go through the test. Is he any good? This was asked by the secretary of the examination board कि क्या कुछ ठीक ठाक तो है. He was the only one in the class, so you can say he has had individual tuition all the time. Really, it would have cost him a packet if he had been outside. So the governor, what does he say? Governor says that he was the only one in the class, so you can say that he was taking private tuition. If he had he gone outside to take that tuition, it would have cost a lot of him. यानी अगर वो बाहर ट्यूशन लेने जाता इस प्रकार की तो काफ़ी पैसा लग जाता उसका, लेकिन चूंकि वो एक ही था इसलिए नाइट क्लासेस उसकी ट्यूशन जैसी ही हैं. Well, let's give him a chance, shall we? This was said by the secretary of the examination board. That's jolly kind of you. What exactly is the procedure now? यानी अब सेक्रेटरी गवर्नर ने पूछा है कि प्रोसीजर क्या है. जेल के गवर्नर ने. Oh, don't worry about that. I will be sending you all the forms and stuff. What is his name? You say Evans. James Roderick Evans. It sounded rather grand. यानी उसका फुल नेम है जेम्स रोडेरिक इवांस. दिस वाज इन्फॉर्म्ड बाय the governor of the jail to the secretary of the examination board. Just one thing, governor, he is not a violent sort of fellow, is he? Okay, the secretary wanted to confirm कि कहीं वो violent type का तो नहीं है, हिंसक तो नहीं है. I don't want to know his criminal record or anything like that, but I just want to know whether he is a violent sort of fellow. यानी कोई हिंसक प्रकार का तो नहीं है कि एग्जामिनर कोई घायल कर दे. No, there is no record of violence. Quite a pleasant sort of chap. यानी बहुत प्लेजेंट है, बहुत अच्छा है. दे टेल मी, दे टेल मीन्स पीपल टेल मी. बिट ऑफ ए कार्ड, रियली. बिट ऑफ ए कार्ड का मतलब होता है फनी. बिट ऑफ ए कार्ड रेफर्स टू फनी. फनी को रेफर करता है. वन ऑफ द स्टार्स एट क्रिसमस कॉन्सर्ट. जब व्हेनेवर द क्रिसमस कॉन्सर्ट इज हैपन ही बिकम्स द स्टार. इमिटेशंस, ही इमिटेट्स, वो लोगों की मिमिक्री करता है. किनकी? माइक यारवुड स्टफ की मिमिक्री करता है. नो, ही इज जस्ट ए कंजेनिटल क्लेप्टोमेनिक, दैट्स ऑल. कंजेनिटल कहते हैं जन्मजात, बाई बर्थ. और ये क्लेप्टोमेनिक क्या होता है? क्लेप्टोमेनिक इट्स अ काइंड ऑफ डिजीज ऑफ स्टीलिंग थिंग्स, यानी उसे चीजें चुराने की आदत है. तो ये क्लेप्टोमेनिक इट्स द नेम ऑफ अ डिजीज. कंजेनिटल मीन्स बाई बर्थ, दैट्स ऑल. So here the governor gave the information to the secretary that his full name is James Roderick Evans and he is a kind of congenital kleptomaniac. This was the name of the disease which he was suffering from. Congenital means janamjat by birth. The governor was tempted to add something else but he thought better of it. गवर्नर कुछ और बातें भी बताना चाहता था उसको, लेकिन उन्होंने उस चीज के बारे में नहीं बताया. He would look after that particular side of things himself. He thought कि these things are not to be talked or not to be told to the secretary of the examination board. He himself is able to look after all those things. Presumably, said the secretary. Presumably means probably. You can arrange a room where? Secretary asked about the room. Then governor said no problem. He is in a cell on his own. If you have no objection, he can sit the exam in there. Cell कहते हैं जेल का जो कमरा है उसको सेल कहा जाता है. That's fine, and we could easily get one of the parsons from St. Mary Max to invigilate if that is. Parsons कहते हैं priest को. हम आराम से किसी भी priest को invigilator बनाकर भेज सकते हैं. Fine, yes, they seem to have a lot of parsons there. बहुत सारे उनके पास में parsons priest हैं वहाँ पे. The two men chuckled good natured. Chuckled means
exchanging the laughs, आपस में एक दूसरे के साथ में खूब हंसी मजाक की. And the secretary had a final thought, at least there is one thing, you should not have much trouble keeping him incommunicado. Incommunicado means without any means of communication. यहाँ पर सेक्रेटरी ने क्या कहा, बस आपको ये करना है कि उसके साथ में किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, यानी the protocol of the examination should be strictly followed. The governor chuckled politely once more, reiterated his thanks and slowly cradled the phone. Reiterated means repeat. उसने अपना वापस थैंक यू बोला गवर्नर ने सेक्रेटरी को और फोन रख दिया. Evans the break. अब यहाँ पर हमें इस पैराग्राफ में we shall get more information about Evans के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी. Evans the break, उसको लोग जानते हैं Evans the break ऑफिसर. Evans the break के रूप में सारे प्रिजन ऑफिसर्स उसे बुलाते हैं. Thrice he had escaped from prison. So here we get some more information that three times he had got success in breaking the prison. And but for the recent wave of unrest in the maximum security establishment of North, he wouldn't now be gracing the governor's premises in Oxford. लेकिन अभी जो recent wave of unrest चल रही, unrest का मतलब बेचैनी का माहौल चल रहा है पूरे ऑक्सफोर्ड प्रिजन में, because the people have the doubt, लोगों को ये डाउट है कि हो सकता है कि वो गवर्नर के जो प्रेमिसेस हैं ऑक्सफोर्ड के, इनको भी तोड़ के भाग जाए. And the governor was going to make absolutely certain that he wouldn't be disgracing them. और गवर्नर is going to make every effort to make it sure that he does not run away from there, because it would be an insulting factor for him. Disgracing matlab insulting. Not that Evans was a real burden, just a persistent nagging presence. Evans real burden नहीं था, लेकिन उसकी जो persistence means continuous, nagging means जो दिमाग खराब कर देने वाली जो उसकी presence थी वो ज़्यादा disturbing थी. He would be all right in Oxford though. The governor would see to that, would see to personally. ऑक्सफोर्ड में ही वुड बी ऑल राइट, ही वुड नॉट डू लाइक दैट, ऐसा नहीं करेगा. द गवर्नर खुद उसको पर्सनली मॉनिटर करेगा. एंड बिसाइड्स देयर वाज जस्ट अ पॉसिबिलिटी दैट इवांस वाज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन ओ लेवल जर्मन. सो ऑल दीज थिंग्स एक्चुअली आर गोइंग इनटू द माइंड ऑफ द गवर्नर. गवर्नर इन सब चीज़ों को सोच रहा है कि लोग उसे 3 बार वो भाग चुका है, लोग उसे इवांस द ब्रेक के नाम से जानते हैं, और गवर्नर खुद उसका मैं ध्यान रखूंगा कि वो यहाँ से भाग ना पाए. तो एक्चुअली ही इज स्वेइंग बिटवीन द कॉन्फ्लिक्ट्स. उसके दिमाग में कॉन्ट्रडिक्टरी थॉट्स आ रहे हैं कि नहीं मैं खुद देखूंगा तो कैसे भागेगा. फिर वो सोचता है कि देयर वाज जस्ट ए पॉसिबिलिटी दैट इवांस वाज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन ओ लेवल जर्मन. ही हैज अ डाउट आल्सो इन हिज माइंड कि मुझे नहीं लगता कि इवांस को इस ओ लेवल जर्मन के कोर्स में कोई भी इंटरेस्ट है. जस्ट अ स्लाइट पॉसिबिलिटी. ही इज डैम श्योर दैट ही इज नॉट इंटरेस्टेड. Just a very slight possibility. At 8:30 p.m. on Monday, 7th June, Evans' teacher shook him by the hand in the heavily guarded recreational block just across from D wing. 8:30 बजे 7 जून को इवांस का जर्मन टीचर पहुंचा और उसने उसे shook him by the hand, अपने हाथ से पकड़कर हिलाया उसे, in the heavily guarded recreational block. Recreational block, the block which is used for entertainment purpose, जिसे entertainment purpose के लिए यूज किया जाता है, उस रिक्रिएशनल ब्लॉक में उसकी पढ़ाई चल रही थी, नाइट क्लासेस. और ये क्लास का आज 7th जून लास्ट दिन था, बिकॉज ऑन 8th जून ही वॉज गोइंग टू टेक द एग्जामिनेशन. एंड what did his teacher say? His teacher say, "Guten Glück, Herr Evans." Pardon, Evans नहीं समझा. अब Evans जर्मन लैंग्वेज की कोचिंग कर रहा है और उसे ये सब समझ में नहीं आए. इसका मतलब ही वाज हियर वी गेट द हिंट दैट ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन एट ऑल इन जर्मन लैंग्वेज. आई सेड गुड लक फॉर टुमारो. ओह थैंक्स, आई मीन डैंक हिज खून. ये यूज किया किसने? इवांस ने ये वर्ड. इसका मतलब होता थैंक यू जर्मन लैंग्वेज. यू हैवंट अ कैट इन द हेल्थ चांस ऑफ गेटिंग थ्रू. कैट इन हेल्थ चांस मीन्स थिन चांस. तुम्हारे कोई भी चांस नहीं है कि तुम इस एग्जाम को पास कर जाओ. दिस वॉज सेड बाय हिज जर्मन टीचर. तो उसको भी पूरी तरह से श्योर था कि एक्चुअली ही इज़ नॉट स्टडिंग एनीथिंग और उसका कोई चांस नहीं है एग्जाम पास करने का. व्हाट डिड इवांस से? आई मे सरप्राइज एवरीबडी. मैं सबको सरप्राइज कर सकता हूँ. एट 8:30 द फॉलोइंग मॉर्निंग इवांस हैड ए विजिटर. 8:30 बजे अगली सुबह इवांस से मिलने कोई विजिटर आया. एक्चुअली 2 विजिटर्स थे. ही टक्ड का मतलब अंदर डालना. हिज ग्रबी स्ट्रिंग वेस्ट. ग्रबी मीन्स गंदी, स्ट्रिंग वेस्ट मीन्स बनियान, इनटू हिज इक्वली ग्रबी ट्राउजर. अपने ट्राउजर के अंदर उसने अपनी बनियान ठूसी. एंड स्टूड अप फ्रॉम हिज बंक. बंक कहते हैं चारपाई.
बंक कहते हैं चारपाई को। स्माइलिंग चीयरफुली, मॉर्निंग मिस्टर जैक्सन, दिस इज इंडीड एन ऑनर। अब ये मिस्टर जैक्सन कौन है? मिस्टर जैक्सन इज द प्रिजन ऑफिसर और वो सीनियर ऑफिसर है। वन मोर जूनियर ऑफिसर इज विद हिम, दैट इज स्टीफन्स। तो ये दोनों ही अंदर जो जेल के अंदर इवांस है उसकी पूरी तरह से प्रिकॉशंस को अश्योर करेंगे कि वो वहां से भाग ना जाए। जैक्सन सीनियर ऑफिसर, डी विंग एंड ही एंड इवांस हैड ऑलरेडी बिकम वार्म एनिमीज। दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। दुश्मन किस तरह से बन चुके थे? सिर्फ इसीलिए कि इवांस तो क्रिमिनल था और वो थोड़ा स्ट्रिक्ट ऑफिसर था, तो दोनों के आपस में बनती नहीं थी। एट जैक्सन साइड स्टूड ऑफिसर स्टीफन्स, अ बर्ली सर्ली लुकिंग। बर्ली मीन्स स्ट्रॉन्ग, सर्ली का मतलब होता है, सर्ली मीन्स वेरी हार्श, बहुत हार्श दिखने वाला एक आदमी था स्टीफन्स। ओनली रिसेंटली रिक्रूटेड टू द प्रोफेशन, वो अभी अभी भर्ती किया गया। इसका मतलब हु इज द सीनियर? सीनियर इज जैक्सन and junior is Stephens. Why this senior and junior being talked about? Because this has a very much importance in the plan of Evans running away from there. Jackson nodded curtly. And how is our little Einstein this morning then? Curtly. Curtly means precisely, harshly. Jackson ने बड़े ही harsh तरीके से कहा, और आज हमारा आइंस्टीन कैसा है? So Einstein refers to Albert Einstein and he is a man of academics. यहाँ पर अगर जैक्सन ने उसके लिए यूज किया था, actually he is trying to make fun of Evans. Wasn't he a mathematician, Mr. Jackson? I think he was a Jew, Mr. Jackson. This was said by Evans. Evans' face was unshaven and he wore a filthy looking red and white bobble hat upon his head. Evans का face unshaved था और उसने फिल्दी लुकिंग यानी गंदी सी दिखने वाली रेड एंड वाइट बॉबल हैट पहनी हुई थी। आई एम गोइंग टू शो यू द रेड एंड वाइट बॉबल हैट। दिस इज रेड एंड वाइट बॉबल हैट। दिस काइंड ऑफ हैट वाज worn by him. You can say red and white bobble hat. Give me a chance, Mr. Jackson. I was just going to shave when you bust in. Bust in means came in suddenly. Which reminds me, Jackson turned his eyes on Stephens. अच्छा, तुम्हारी शेविंग से मुझे याद आया, स्टीफन्स ने जैक्सन की तरफ इशारा देखते हुए कहा, मेक श्योर यू टेक हिज रेजर आउट ऑफ द सेल व्हेन ही हैज फिनिश्ड स्क्रैपिंग दैट अगली मग ऑफ हिज। मग हियर रेफर्स टू फेस, लेकिन मग का मतलब फेस नहीं होता, ये एक स्लैंग वर्ड होता है जो फेस के लिए यूज किया जाता है, तो इसलिए आप इसको सिनोनिम के रूप में यूज ना करें। मेक श्योर यू टेक हिज रेजर आउट ऑफ द सेल, आपको ये डिसाइड करना है कि आपको उसकी सेल से रेजर निकाल लेना है जब वो अपनी शेविंग कर चुका। Clear? One of these days he will do us all a favor and cut his bloody throat. थोड़ा ध्यान रखना, हमारे लिए थोड़ा कहीं फेवर ना कर दे, अपना ब्लडी थ्रॉट काट ना ले, किससे? रेजर से। This was said by Mr. Jackson. So actually he was pointing towards Evans कि Evans हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, अच्छा है कि अपना गला काट के मर जाए, हमारे लिए एक फेवर हो जाएगा। This was said by this shows that how uncomfortable he is with the presence of Evans. For a few seconds, Evans looked thoughtfully at the man standing in front of him. कुछ सेकंड के लिए इवांस को भी गुस्सा आया और उसने उस आदमी की तरफ, द मैन यानी मिस्टर जैक्सन की तरफ देखा। स्टैंडिंग रैमरोड, रैमरोड मीन्स लाइक ए स्टिक, स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम, बिल्कुल उसके सामने। A string of Second World War medals proudly paraded over his left breast pocket. उसके लेफ्ट ब्रेस्ट पॉकेट पर सेकेंड वर्ल्ड वार के मेडल्स लगे हुए थे। किसकी? मिस्टर जैक्सन की। तो मिस्टर जैक्सन को उसने ध्यान से थोड़ा घूर के देखा। मिस्टर जैक्सन, वॉज इट यू हु टुक अवे माई नेल सीजर्स अवे? क्या आप मेरे नेल सीजर्स को आप लेके गए थे? इवांस हैड ऑलवेज वरीड अबाउट हिज हैंड्स, इवांस अपने हाथों का बहुत ध्यान रखता था। एंड योर नेल फाइल टू, ना केवल तुम्हारा नेल सीजर बल्कि मैं नेल फाइल भी लेके गया था। अब नेल फाइल क्या होती है? आई एम गोइंग टू शो यू, दिस इज नेल फाइल, ये आप देख सकते हैं, ये नेल कटर के साथ में ही आती है। नेल फाइल विच इज जनरली टू गिव ए शेप, पर्टिकुलर शेप टू नेल्स आफ्टर कटिंग। लुक फॉर ए मोमेंट इवांस आई स्मोल्डर्ड डेंजरस, स्मोल्डर्ड का मतलब होता है गुस्से से बर्न होना। इवांस की आंखें थोड़ी देर के लिए गुस्से से लाल हो गई, उसने कहा लुक, बट जैक्सन वॉज रेडी फॉर हिम। जैक्सन ऑल्सो न्यू कि इवांस थोड़ा सा खतरनाक है, इसलिए उसने तुरंत उस चीज को क्या बोला? ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नर जी। इवांस दीज आर द ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नर, ये गवर्नर के ऑर्डर, आई कैनॉट डू एनीथिंग। ही लीन्ड फॉरवर्ड एंड लियर्ड, हिज वॉइस ड्रॉपिंग टू ए हार्श कंटेम्प्टुअस विस्पर। लीन फॉरवर्ड मीन्स आगे की तरफ झुका, लियर का मतलब एक हार्श चेहरा बनाया।
his voice dropping to a harsh, और अपनी आवाज को बहुत हार्श बना के contemptuous means full of hatred, नफरत से भरी हुई आवाज में बोला, you want to complain? तुम्हें कंप्लेन करनी है? Ivan shrugged his shoulders lightly. Shrugged his shoulders, shrug means कंधों को उचकाना. The crisis was over. What kind of crisis? The crisis was of just what to say, the quarrel or the dispute between Evans and Mr. Jackson. ये क्राइसिस अब ओवर हो गया था, ये क्राइसिस टल गया था, ये संकट टल गया था कि मिस्टर इवांस और मिस्टर जैक्सन के बीच में लड़ाई हो सकती थी. यू हैव गॉट हाफ एन आवर टू स्मार्टन योरसेल्फ अप इवांस एंड मेक दैट ब्लडी हेट ऑफ. अब तुम्हारे पास में आधा घंटा बचा है, अपने आप को अच्छे से स्मार्टन कर लो एंड टेक दैट ब्लडी हैट ऑफ, और अपना ये हैट उतार कर फेंक दो. Me at who? Evans put his right hand lovingly on top of the filthy woolen and smiled sadly. Evans ने अपना राइट हैंड कहाँ पर रखा? फिल्दी वुलन, यानी फिल्दी वुलन इसी को रेफर करता है जो रेड एंड वाइट जो हैट था उसी की तरफ. और उसको देखकर उसने क्या कहा? डू यू नो मिस्टर जैक्सन, इट इज़ द ओनली थिंग दैट हैज़ एवर ब्रॉट मी एनी sort of good luck in life, kind of lucky charm, if you know what I mean. And today I thought well with my exam and all that. So here Evans is seeking for a permission from Mr. Jackson for keeping that particular woolen hat, because he says that that woolen hat is a kind of lucky charm for him, कि ये उसके लिए एक lucky charm की तरह है, इसलिए he should be allowed to keep that particular thing with him because of examination. Buried somewhere in Jackson was a tiny core of compassion and Evans knew it. जैक्सन में कहीं ना कहीं इवांस के लिए एक सहानुभूति, कंपैशन कहते हैं सिंपैथी का एक कहीं छोटा छोटा हिस्सा था, और इवांस इस बात को अच्छे तरीके से जानता था. जस्ट दिस वंस देन शिरले टेम्पल, हियर इट इज द सिंबल ऑफ हैप्पीनेस. शिरले टेम्पल एक फेमस एक्ट्रेस का भी नाम है, लेकिन शिरले टेम्पल साथ ही साथ में एक ड्रिंक का भी नाम है. I'm going to show you. This is Shirley Temple recipe. What to show? Shirley Temple is a non-alcoholic mixed drink traditionally made with ginger ale and splash. तो it's a kind of dish, लेकिन ये यहाँ पर happiness का symbol है. Just this once, बस एक बार मुझे allow कर दो, then everything will be good. He wants to say like that. If there was one thing that Jackson genuinely loathed about Evans, it was his long wavy hair. अगर जैक्सन को जेन्युइनली किसी चीज से इवांस के बारे में नफरत थी तो वो थे उसके लॉन्ग वेवी हेयर. तो इसका मतलब ये हुआ कि जैक्सन अलाउड हिम टू कीप द हैट फॉर टू रीजंस. बिकॉज द फर्स्ट रीजन वाज दैट इट वाज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द साइड ऑफ इवांस, बिकॉज he said that it was a kind of lucky charm for him. The first reason was that, and the second reason was that this one Jackson did not want Evans to reveal his long wavy hair. उसे उससे नफरत थी, इसलिए उसने कहा अच्छा है ढके रहे, एंड गेट शेविंग, और शेविंग फटाफट कर लेना. At 8:45 the same morning, the Reverend Stuart McClary left his bachelor flat in Broad Street and stepped out briskly towards Carfax. Carfax is the name of the place. 8:45. अब ये पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है इसको हम कहते हैं हाइपरबोलिक डिस्क्रिप्शन. हाइपरबोलिक डिस्क्रिप्शन मीन्स कोई बहुत बड़ी घटना जैसे होने जा रही है उसको बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है. 8:45 सेम मॉर्निंग, रेवरेंड रेफर्स टू ऑनरेबल, लेकिन ये सिर्फ प्रीस्ट के लिए यूज किया जाता है. नेम ऑफ द पर्सन वाज स्टुअर्ट मैक्लेरी. ही वाज द इन्विजिलेटर. ही लेफ्ट हिज बैचलर फ्लैट इन ब्रॉड स्ट्रीट एंड स्टेप्ड आउट briskly means rapidly, and which place he was going towards? Carfax. The weatherman reported temperatures considerably below the normal for early June, and a long black overcoat and a shallow crowned clerical hat provided welcome protection from the steady drizzle which had set in half an hour earlier and which now spattered the thick lenses of spectacles. वेदर रिपोर्ट भी आ रही है. अब देखो वेदर रिपोर्ट कब आती है? जब कोई बहुत बड़ी इवेंट या बहुत बड़ा क्रिकेट मैच होने जा रहा हो. ये तो कोई बहुत बड़ी इवेंट नहीं थी, जस्ट मेकिंग फन. द राइटर इज मेकिंग फन. वेदरमैन ने टेम्परेचर बताया कि अर्ली जून के अंदर ये नॉर्मल से थोड़ा नीचे रहेगा, और ही वॉज वेयरिंग ए लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट. हु वॉज वेयरिंग? स्टुअर्ट मैक्लेरी. एंड अ शैलो क्राउंड क्लैरिकल हैट उसने पहना हुआ था, and it was giving him protection from the steady drizzle. Steady means continuous, drizzle means drizzling जो हो रही थी, पानी की बूंदें यानी बारिश हो रही थी, which had set in half an hour earlier, जो लगभग आधे घंटे पहले ही शुरू हुई थी, which now spattered the thick lenses of spectacles, जो कि उसके spectacles यानी चश्मे के जो lenses थे उनके ऊपर, spatter means छाई हुई थी या बिखर रही थी. In his right hand he was carrying a small brown suitcase
उसके राइट हैंड में एक स्मॉल ब्राउन सूटकेस था विच कंटेंड ऑल दैट ही वुड नीड फॉर हिज मॉर्निंग ड्यूटीज़, और जो उसको मॉर्निंग ड्यूटीज़ में जिसकी ज़रूरत हो सकती थी, इंक्लूडिंग ए सील्ड क्वेश्चन पेपर एनवलप, अ येलो इन्विजिलेशन फॉर्म, अ स्पेशल ऑथेंटिकेशन कार्ड. Authentication card means identity card from the examination board, a paper knife and a Bible. He was to speak to the women's guild that afternoon on the book of Ruth. अब ये चूंकि प्रीस्ट थे इसलिए उनको उस शाम चर्च के उस आफ्टरनून एग्जामिनेशन के बाद में इस बुक ऑफ रूथ, ये बाइबल का एक चैप्टर है, उसमें जो विमेंस गिल्ड का एक सब चैप्टर है उसके ऊपर उनको प्रीचिंग करनी है, इसलिए वो भी अपने साथ में ले आए ताकि एग्जामिनेशन के दौरान उसको पढ़ते रहें और उसकी प्रिपरेशन कर सकें. एंड अ करंट कॉपी ऑफ द चर्च टाइम्स. सो दीज टू थिंग्स ही केप्ट विद हिम, दिस मैन स्टुअर्ट मैकलेरी, जस्ट टू pass his time while the examination would be going on. So you have to keep these things in mind कि कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने अपने साथ में ली थी. स्मॉल ब्राउन सूटकेस और सील्ड क्वेश्चन पेपर एनवलप, a yellow invigilation form, a special identity card which was issued by the examination board, paper knife. What is paper knife? I'm going to show you the knife which is used to cut the paper. This is paper knife. You can see here. Okay. Church Times is the newspaper's name. The 2-hour examination was scheduled to start at 9:15 a.m. तो 2 घंटे का पेपर था, वो 9:15 पर शुरू होना था. Evans was lathering his face. Lathering his face means shaving his face. आप देखते हैं लेदर शेविंग क्रीम, तो लेदरिंग उसी से बना हुआ वर्ड है. Vigorously means with full enthusiasm, बहुत जिसे कहते हैं जोश से. When Stephens brought in 2 small square tables, अब जब उसी समय स्टीफन्स लेकर आया 2 small square tables लेकर आया, tables in the shape of a square, and set them opposite each other in the narrow space between the bunk on one side and on the other a distempered stone wall. एक तरफ ये आपकी हो गई चारपाई, दूसरी तरफ ये वॉल, और इन दोनों वॉल के बीच में 2 टेबल्स रख दी गई, एक टेबल ये, एक टेबल ये. ओके. नेक्स्ट स्टीफन्स ब्रॉट इन 2 हार्ड चेयर्स. उसके बाद में 2 हार्ड चेयर्स लाई गई. द स्लाइटली लेस बैटर्ड, थोड़ी कम टूटी हुई थी, विच ही प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द टेबल विच स्टूड नियरर द सेल डोर. और दोनों जो सेल डोर के पास में, दरवाजे के पास में, एक चेयर यहाँ पे रखी गई, एक चेयर यहाँ पे, अश्यूमिंग दैट द डोर इज हियर, मानते हुए कि 2 दरवाजे यहाँ पर हैं, इसके साथ में ये 2 चेयर्स रख दी गई. जैक्सन पुट इन अ ब्रीफ फाइनल अपीयरेंस, बिहेव योरसेल्फ लेडी. जैक्सन गेव अ फाइनल वार्निंग टू हिम, इवांस, की थोड़ा तमीज से बिहेव करना. इवांस टर्न्ड एंड नॉडेड. इवांस ने अपना सिर हिलाया. एंड दीज, जैक्सन पॉइंटेड टू द पिनअप्स. पिनअप्स क्या होते हैं? पिनअप्स आर द पोस्टर्स. पोस्टर्स जो घरों में लगे हुए होते हैं. तो बिकॉज ही वॉज अ क्रिमिनल, तो उसके भी कुछ फेवरेट हीरो या एक्ट्रेसेस के पोस्टर्स लगे होंगे, इसलिए उसको कहा गया कि इनको उतार दो. बिकॉज इवांस टर्न्ड एंड नॉडेड अगेन. इवांस दोबारा मोड़ के क्या पूछता, was going to take them down anyway, a minister isn't it? अच्छा, मैं इनको उतारने ही वाला था, वो एक प्रीस्ट है ना, तो प्रीस्ट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए सब कुछ, इसलिए मैं उनको उतार दूंगा. द चैप कमिंग टू सिट इन मींस इवांस न्यू हु वाज गोइंग टू टेक द एग्जामिनेशन. इवांस को पता था कि उसका इन्विजिलेटर कौन होगा. तो जैक्सन आल्सो आस्क्ड कि हाउ डिड यू नो दैट, तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? वेल, आई हैड टू साइन सम फॉर्म्स, डिडंट आई, एंड आई कुडंट हेल्प. मुझे कुछ फॉर्म साइन करने थे. देन इवांस गिव्स द इन्फॉर्मेशन कि उसे कुछ फॉर्म साइन करने थे एग्जामिनेशन से पहले. एंड फ्रॉम देयर ही गॉट द इन्फॉर्मेशन दैट अ मिनिस्टर वाज गोइंग टू टेक द एग्जामिनेशन. मिनिस्टर हियर रेफर्स टू प्रीस्ट. इवांस ड्रू द रेजर केयरफुली डाउन हिज लेफ्ट चीक एंड लेफ्ट a neat swath in the white leather. Swath means a line, एक लाइन को रेफर करता है. यानी इवांस ने रेजर को बड़ी केयरफुली अपनी लेफ्ट चीक पर चलाया और पीछे बिल्कुल क्लीन लकीर छोड़ता गया. यानी जैसे शेविंग करने के बाद में जब फोम हटता है तो पीछे क्लीन एरिया बचता है. कैन आई आस्क यू समथिंग मिस्टर जैक्सन? अब उसका अगला सवाल था, क्या मिस्टर जैक्सन मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? व्हाई डिड दे हैव टू बग मी इन दिस सेल? वो मुझे इस सेल में क्यों रखना चाहते हैं, इस सेल में एग्जामिनेशन क्यों लेना चाहते हैं? ही नोटेड हिज हेड वैगली टू ए पॉइंट. उसने अपना सिर हिलाकर ऊपर एक पॉइंट की तरफ देखा. वैगली मीन्स अनक्लियरली, एक पॉइंट की तरफ देखा अबव द डोर, जो डोर के ऊपर था. सो व्हाट वाज दैट? एक्चुअली इट वाज ए साउंड रिसीवर. ये एक माइक था और साउंड रिसीवर था, ये जो कि स्पेशली उसके लिए वहां पर रखा हुआ था. उसने उसी की तरफ देखकर इशारा करते हुए पूछा कि मुझे इस सेल में क्यों रखा गया. Not a very neat job, conceded Jackson. Conceded means accepted. Jackson accepted.
इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी जॉब टू टेक योर एग्जामिनेशन. तुम्हारा एग्जाम लेना कोई आसान जॉब नहीं है. दे आर नॉट, दे डोंट ऑनेस्टली थिंक आई एम गोइंग टू ट्राई टू. वे कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि मैं यहाँ से, तो ऑब्वियसली वो कहना चाह रहा था कि कहीं वो ये तो नहीं सोच रहे हैं सब लोग कि मैं यहाँ से भागने जा रहा हूँ इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए. दे आर टेकिंग नो चांसेस. इवांस वो कोई भी चांस नहीं लेना चाहते. नबडी इन दिस हिज सेंसेस वुड टेक एनी चांस विद यू. जो भी होश में है वो भी, कोई भी तुम्हारे साथ में इस तरह के चांस नहीं लेगा. हु इज गोइंग टू लिसन इन. तो ये जो आवाज़ अंदर होगी इसको कौन सुनेगा? I'll tell you who's going to listen in, lady. It is the governor himself. See, गवर्नर खुद सुनेगा इन आवाज़ों को. He don't trust you a bloody inch, and nor do I. I will be watching you like a hawk. Hawk कहते हैं गिद्ध को. मैं तुम्हारे ऊपर गिद्ध जैसी नज़र रखूंगा. Evans, so keep your nose clean. Keep your nose clean means don't make any noise. He walked towards the door. Evans nodded. He had already thought of that, and number 2 handkerchief was lying ready on the bunk, a neatly folded square of ऑफ-वाइट लिनेन. लेकिन इवांस ने पहले ही इन सब चीज़ों के बारे में सोच लिया था. तो हियर द राइटर इज ट्राइंग टू गिव अस एन इंडिकेशन दैट इवांस ने इन सब चीज़ों के बारे में पहले ही सोच रखा है, उसने पहले ही प्रिपरेशन कर रखी है. और उसका दूसरा हैंकरचीफ बंक के ऊपर यानी चारपाई के ऊपर पड़ा हुआ था. अ नीटली फोल्डेड स्क्वायर, बिल्कुल अच्छे ढंग से फोल्ड किया हुआ था. ऑफ वाइट कलर का था. लिनेन, लिनेन इज ए काइंड ऑफ फाइन क्लोथ. लिनेन कपड़े के एक मटेरियल का नाम. Just one more thing, Einstein. Yes, what is that? Just more one thing. ये मिस्टर जैक्सन ने कहा. आइंस्टीन के नाम से उसको बुलाया करता था मजाक उड़ाने के लिए उसका. Yeah, what is that? Good luck, old son. In the little lodge just inside the prison's main gates. एक छोटे से कमरे के अंदर, प्रिजन के मेन गेट्स के बाहर, जहाँ पर गार्ड रूम होता है, वहाँ पर रेवरेंड एस मैक्लेरी जो कि इन्विजिलेटर हैं, साइंड हिज नेम नीटली इन द विजिटर्स बुक. विजिटर्स बुक में अपनी एंट्री की एंड देंस वॉक साइड बाय साइड विद अ साइलेंट प्रिजन ऑफिसर अक्रॉस द एक्सरसाइज यार्ड टू डी विंग. और एक्सरसाइज यार्ड से लेकर डी विंग की तरफ एक प्रिजन ऑफिसर ने उनको एस्कॉर्ट किया, यानी उसने उन्हें गाइड किया. वेयर ही वाज ग्रेटेड बाय मिस्टर जैक्सन, और मिस्टर जैक्सन मिले. फिर विंग का हैवी आउटर डोर खोला गया और फिर वापस लॉक कर दिया गया. हैवी इनर डोर भी खोला गया और फिर मैक्लेरी को स्टीफन के पास में ले जाया गया. यानी स्टीफन यानी ये जैसे इवांस की जेल है, उसके बाद में एक ये सिक्योरिटी है और फिर ये वाली सिक्योरिटी है और उसके बाद में बाहर यार्ड है और फिर गेट है. इतनी ज़बरदस्त सिक्योरिटी के अंदर इवांस का एग्जामिनेशन होने जा रहा है. गेट द रेजर. रेजर बाहर निकाल लिया. मर्मर्ड जैक्सन. स्टीफन्स नॉडेड. नॉडेड मीन्स except even Stephens moved his head, shook his head in acceptance कि yes I have done that. Well, keep your eyes skinned clear. Keep your eyes skinned clear. Skinned का मतलब बिल्कुल eyes चौकन्नी रखना, अपनी साफ रखना. Stephens nodded again and McClary his feet clanging up the iron stairs. Stephen ने दोबारा अपनी गर्दन हिलाई और McClary जिनके पैर अब आयरन स्टेयर्स के ऊपर थे followed his new guide, अपने नए गाइड के साथ में, यानी जिसका नाम था मिस्टर स्टीफन्स. एंड फाइनली स्टूड बिफोर ए सेल डोर. और फाइनली वो उस सेल दरवाजे के सेल डोर के सामने पहुंच गए जहां इवांस को रखा हुआ था. वेर स्टीफन्स ओपन द पीप होल. पीप होल का मतलब होता है जो झांक के अंदर देखने के, एक छोटा सा हॉल होता है जिसमें अंदर आप झांक कर देख सकते हैं. दैट्स हिम सर. इवांस फेसिंग द डोर. अंदर इवांस कैसे बैठा हुआ, दरवाजे को फेस करके. सेट क्वाइटली एट द फार्दर ऑफ द टू टेबल्स. दोनों टेबल से दूर बैठा हुआ था. हिज ऑल अटेंशन रिवेटेड मीन्स डाइवर्टेड टू ए टेक्स्ट बुक ऑफ एलिमेंट्री जर्मन ग्रामर. उसका पूरा ध्यान जर्मन ग्रामर की बुक पर था. स्टीफन्स टुक द की फ्रॉम इट्स रिंग. स्टीफन्स ने अपनी रिंग से एक चाबी निकाली एंड द सेल लॉक स्प्रिंग बैक विद अ थर्डेड मेटालिक ट्वांग. थर्डेड मीन्स थर्डिंग साउंड, जैसे बहुत बड़ी साउंड हुई हो. मेटालिक जैसे मेटल के बजने की आवाज़ होती है. ट्वांग, ट्वांग एक ऑनमेटोपोइक वर्ड है. अब जैसे मैं ट्वांग बोलता हूँ तो इट्स क्रिएटिंग ए साउंड. इसी साउंड के साथ में दरवाज़ा खुला. इट वॉज 9:10 AM. 9:10 हो चुके थे. एंड वेन वॉज द एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड टू बी स्टार्टेड. एग्जाम कब शुरू होना था? द एग्जाम वॉज शेड्यूल्ड टू बी स्टार्टेड एट 9:15 AM and it was already 9:10 AM. When the governor switched on the receiver, governor had already switched on the receiver. गवर्नर ने अपना रिसीवर स्विच ऑन कर दिया था जिससे सेल से डायरेक्ट आवाज़ें उसके पास पहुंच रही थी. He had instructed Jackson to tell Evans of the temporary little precaution. उसने जैक्सन को बताया था
कि इवांस को बाद देना, थोड़ा ध्यान से रहे, दैट वाज ओनली फेयर, जो फेयर है वही काम करे, एज इफ इवांस वुडंट स्पॉट इट, जैसे इवांस इन सब चीज़ों को मान लेगा। बट वाजंट इट ऑल ए बिट थिएट्रिकल? दिस वाज बीइंग थॉट बाय गवर्नर। गवर्नर अपने दिमाग में ये सब चीज़ें सोच रहा था, क्या ये ड्रामेटिकल नहीं है, स्कूल बॉयज, स्कूल बच्चों की तरह? हाउ ऑन अर्थ वाज इवांस गोइंग टू ट्राई एनीथिंग ऑन टुडे? आज इवांस ये सब ट्राई कैसे करेगा, बचने की, भागने की कोशिश क्यों करेगा? इफ ही वाज सो एंग्शियस टू मेक अनदर ब्रेक, अगर उसे बचना ही होता, व्हाई इन हेवंस नेम हैडंट ही ट्राइड फ्रॉम द रिक्रिएशनल ब्लॉक? उसने ये कोशिश रिक्रिएशनल ब्लॉक से क्यों नहीं की? बिकॉज रिक्रिएशनल ब्लॉक वाज द वाइडर वन एंड इट वाज इजी टू गो फ्रॉम देयर, मच ईजियर, बट ही हैडंट। एंड देयर ही वाज नाउ सिटिंग इन ए लॉक्ड सेल, और आज वो इस लॉक्ड सेल के अंदर बैठा हुआ है। ऑल द प्रिजन ऑफिसर ऑन द अलर्ट, 2 more लॉक्ड डोर्स, 2 दरवाजे और हैं बिटवीन हिज सेल एंड द यार्ड। इतनी सिक्योरिटी है, और उसके बाद में यार्ड है, यार्ड भी इतनी, उसके पास में जो दीवार है वो दीवार इतनी हाई है, जैसे मतलब बहुत ऊंची है। हे स्टेक कहते हैं घास का जो क्या कहते हैं, घास का ढेर होता है, तो घास के ढेर का मतलब आप ये समझ लीजिए कि दीवार बहुत ऊंची। यस, इवांस वाज सेफ एज हाउस। Now all these things were thought by actually the governor, and the governor was damn sure that Evans would not run away from there, and he had made enough security arrangement. He was damn sure, he was confident of himself. Anyway, it wouldn't be any trouble at all to have the receiver turned on for the next couple of hours or so. फिर उसने सोचा, why don't to keep receiver turned on? 2 घंटे के लिए रिसीवर को टर्न ऑन रखते हैं, स्विच ऑन करके रखते हैं। It wasn't as if there was going to be anything to listen to, was it? क्या सुनने की कोई चीज है भी? सब एग्जाम अच्छे से होगा। दिस वाज, ये वो सोच रहा था। अमंग्स अदर थिंग्स, एंड इन्विजिलेटर्स ड्यूटी वाज टू एंश्योर रिस्ट्रिक्टेड साइलेंस वाज ऑब्जर्व्ड। और इन्विजिलेटर भी तो कुछ करेगा, हिज ड्यूटी इज टू एंश्योर कि जेल के अंदर यानी कमरे के अंदर स्ट्रिक्ट साइलेंस रहे। बट स्टिल दैट लिटिल नेगिंग डाउट, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में कुछ ना कुछ डाउट। माइट इवांस ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ मैक्लेरी? कहीं ऐसा ना हो कि इवांस मैक्लेरी का एडवांटेज लेने की कोशिश करे, गेट हिम टू स्मगल इन ए चिसल और टू, कहीं हो सकता है उसके पास में कोई वेपन आ जाओ, चिसल वेपन के लिए यूज किया गया, रॉक लेडर आ गई, कुछ इस तरह की चीज आ गई हो सकता है। द गवर्नर सेट अप शार्पली, तो गवर्नर एकदम से खड़ा हुआ। इट वॉज ऑल वेरी वेल गेटिंग रिड ऑफ एनी पोटेंशियल वेपन दैट इवांस कुड हैव यूज्ड। ये बहुत अच्छी बात होगी कि इवांस को पूरी तरह से थॉरली चेक किया जाए, कहीं इवांस के पास में कुछ ऐसा ना हो। बट व्हाट अबाउट मैक्लेरी? यानी उसको तो, इवांस को तो हमने चेक कर लिया, बट व्हाट अबाउट मैक्लेरी? हो सकता है मैक्लेरी कुछ ले आया हो। व्हाट इफ क्वाइट अनविटिंगली, अनविटिंगली मीन्स अनइंटेंशनली, इनोसेंट मैक्लेरी कुछ ऐसा ले आया हो। जैक नाइफ, जैक नाइफ जैसी चीज जो उसे ध्यान में ना हो। अब ये जैक नाइफ क्या होता है? आई एम गोइंग टू शो यू जैक नाइफ। दिस इज जैक नाइफ, यू कैन से इट इज जैक नाइफ। इस तरह की कोई चीज लेकर आया हो। What if Evans held him hostage with such a weapon? कहीं इवांस ने उसे ऐसे एक वेपन के साथ में होस्टेज, बंधक बना लिया तो? द गवर्नर रीच्ड फॉर द फोन, गवर्नर वापस फोन के पास पहुंचा। इट वॉज 9:12 AM, 9:12 हो चुके थे। तो एग्जामिनी एंड द इन्विजिलेटर हैड ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टीफन्स। एग्जामिनी मीन्स एग्जाम देने वाला, यानी इवांस, और इन्विजिलेटर दोनों का आपस में परिचय करा दिया गया था। व्हेन जैक्सन केम बैक एंड शाउटेड टू मैक्लेरी थ्रू द सेल डोर, और उसी समय जैक्सन आया और मैक्लेरी को और स्टीफन्स को, दोनों को आवाज देकर बुलाया। कैन यू कम आउटसाइड ए मिनट सर? 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए बाहर आइए। यू टू स्टीफन्स, स्टीफन्स तुम भी आओ। जैक्सन क्विकली एक्सप्लेन द गवर्नर्स वरीज, एंड जैक्सन एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट द गवर्नर, गवर्नर्स वरीज, गवर्नर की जो टेंशन है, गवर्नर के जो कंसर्न है, उनके बारे में बताया। एंड मैक्लेरी पेशेंटली हेल्ड आउट हिज आर्म्स, और मैक्लेरी ने अपने आर्म्स फैला दिए शोल्डर लेवल पर। एंड जैक्सन लाइटली फ्रिस्क्ड हिज क्लोज, जैक्सन ने उसके जो क्लोथ्स थे, कपड़े जो थे, उनको फ्रिस्क करने का मतलब तलाशी ली। समथिंग हार्ड हियर सर, यहाँ पर कुछ हार्ड है। व्हाट इज दैट? माई रीडिंग ग्लासेस, रिप्लाइड मैक्लेरी लुकिंग डाउन एट द स्पेक्टिकल केस। मेरे रीडिंग ग्लासेस हैं। जैक्सन क्विकली रीअश्योर्ड हिम एंड बेंडिंग डाउन ऑन द लैंडिंग थंब फ्लिक्ड द कैचेस ऑन द सूटकेस। जैक्सन ने उसे पूरी तरह से रीअश्योर किया कि ही हैड नथिंग देयर, और उसके बाद में नीचे बैठते हुए थंब फ्लिक्ड द कैचेस ऑन द सूटकेस, जो सूटकेस के जो स्विचेस थे, जो सूटकेस खोलने के जो थंब से खोले जाते हैं, उनको खोला। He picked up each envelope in turn, हर एनवेलोप को उठाकर देखा। केयरफुली passed his palms along their surfaces, और सरफेस पर पूरी तरह से अपने अंगूठे को मतलब पूरी तरह से पास किया, चेक करके देखा। एंड seemed satisfied. He riffled cursorily through a few pages of Holy Writ and vaguely shook the church times.
उसने पूरी जो हॉली रिट थी, बाइबल जो बुक थी, उसको भी अच्छे तरीके से सर्चिंग की उसकी, और चर्च टाइम न्यूज़पेपर को ऐसे जोर जोर से हिला हिला के देखा. ऑल राइट सो फार, बट वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन मैक्लेरीज सूटकेस वाज पजलिंग हिम sorely. But one object was in the suitcase of McClary which was puzzling him. What was that? Do you mind telling me why have you brought this, sir? उसने उनसे पूछा कि आप ये चीज़ क्यों लेके आए हैं. What was that? It was a smallish semi-inflated rubber ring. ये एक छोटी सी रबर रिंग थी, जो फूली हुई रबर रिंग थी. Such as a young child with a waist of about 12 inches might have struggled into. एक छोटे से छोटे 12 इंच की कमर वाला बच्चा भी उसमें से नहीं निकलती. इट वॉज वेरी स्मॉल. यू थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर ए स्विम, सर? क्या सर आप इसको लेकर कहीं स्विमिंग करने जाएंगे? जस्ट मेड फन ऑफ, जस्ट जोक्ड हिम और जस्ट मेड ए फन ऑफ मैक्लेरी. मैक्लेरीज हिथेटो, हिथेटो मीन्स टिल नाउ. एमिएबल, एमिएबल मीन्स फ्रेंडली. डिमीनर मीन्स बिहेवियर. was slightly ruffled by his tasteless little pleasantry. मैक्लेरी, जो अब तक बड़ा फ्रेंडली बिहेवियर कर रहा, उसे थोड़ा गुस्सा आ गया. एंड ही आंसर्ड जैक्सन समवट साउरली, और उसने जैक्सन को बड़े हार्शली उत्तर दिया. क्या दिया? इफ ही मस्ट नो, ही मीन्स यू, इफ यू मस्ट नो आई सफर फ्रॉम हेमरॉइड्स. हेमरॉइड्स कहते हैं पाइल्स को, कि मैं पाइल्स से पीड़ित हूँ. एंड व्हेन आई एम सिटिंग डाउन फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, और जब मुझे काफ़ी लंबे समय तक बैठना होता है, आई यूज़ दैट रबर रिंग, मैं उस रबर रिंग का यूज़ करता हूँ. Very sorry, sir, I did not mean to. Then Jackson asked for an apology. The embarrassment was still reddening Jackson's cheek. अभी भी जैक्सन के गालों पर embarrassment यानी शर्मिंदगी दिखाई दे रही थी कि why did he ask that question. And when he found the paper knife at the bottom of the case, और उसने वो पेपर नाइफ जो था केस के उस सूटकेस के अंदर, उसे ले लिया उससे. आई थिंक आई वुड बेटर कीप दिस थ्रू इफ यू डोंट माइंड, दैट्स इट सर. और उसने वो जैक नाइफ उसे अलाउ नहीं किया, जैक नाइफ अपने पास में रख लिया. इट वॉज 9:18 AM, ऑलरेडी 3 minutes लेट, बिफोर द गवर्नर हर्ड देयर वॉइसेस अगेन. दोबारा गवर्नर की आवाज़ आई. एंड इट वॉज क्लियर दैट द एग्जामिनेशन वॉज गोइंग टू बी मोर देन अ लिटिल बिट इन गेटिंग अंडर वे. और ये क्लियर था कि एग्जाम थोड़ा सा लेट शुरू होने जा रहा था. यू हैव गॉट अ वॉच. Now the conversation between McClary and Evans. McClary says, "You have got a watch?" Evans says, "Yes, sir. I will be telling you when to start." ये का मतलब you. And again when you have 5 minutes left. यानी मैं 2 बार बोलूँगा कि तुम्हें एग्जाम कब स्टार्ट करना है और कब तुम्हारे पास में 5 मिनट बचेंगे. All right. Silence. McClary, there is plenty more of this writing paper should you need it. मेरे पास में लिखने के लिए और भी पेपर हैं, अगर तुम्हें ज़रूरत पड़े तुम मान सकते हो. McClary says, "Now write the name of paper. 0211 in the top left hand corner." Silence. In the top right hand corner, write your index number 313, and in the box just below that, write your center number 271. All right. So all these were the formalities before the examination commenced. 9:20 AM, already 5 minutes late. McClary says, "I am now going to." Evans says, "He's not going to stay here, is he?" ये इज जो ये ई रेफर करता है, ही को रेफर करता है, और ये रेफर करता है किसको? स्टीफन्स को. इवांस ने कहा कि वो यहाँ शायद उसको यहाँ नहीं रुकना चाहिए. मैक्लेरी सेज, "आई डोंट नो अबाउट दैट." तो स्टीफन्स दरअसल क्या था कि उसके ऊपर पूरी तरह से नज़र रख रहा था, उसके सिर के ऊपर ही खड़ा था, इसलिए उसने ऑब्जेक्शन किया इवांस ने कि अगर वो ऐसे रहेगा तो फिर कैसे काम चलेगा. तो स्टीफन सेज, "मिस्टर जैक्सन हैज़ गिवन मी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन टू." मिस्टर जैक्सन ने मुझे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए. Evans then says, "How am I supposed to concentrate on my exam with someone breathing down my neck?" अगर मेरे गर्दन के ऊपर कोई ऐसे खड़ा रहेगा तो मैं एग्जाम कैसे दूंगा? Christ, sorry sir, I did not mean. The governor reached for the horn. This was being heard by the governor, and the governor said, "Jackson, hey, good, get Stephens out of that cell." Stephens को सेल से बाहर निकालो. Will you? I think we are perhaps overdoing things. हमें लगता है कि हम कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं. As you wish, sir. The governor heard the exchanges in the cell, heard the door clang once more, and Stephens was out of the cell, and heard McClary announce that the examination had begun at last, or at last the examination began. It was 9:25 AM. It means to say the examination was late for 10 minutes, and there was a great calm. Now the examination was going on. Now what happened after the examination, we'll read in the second part. Thank you very much.